Hello everyone. So let's discuss about chapter 2 of economic survey. In this chapter, the name of the topic is India's medium term growth with optimism and hope. So if we have to explain the concept of medium term growth, what is medium term growth? Medium term means a period of 3 to 5 years. Right? More than 5 years is long term, 5 year, 8 year, 10 year, 15 year. So this economic survey will discuss how India's economy will serve in the coming years. So here, going ahead, you can follow us on Telegram channel, and this will give you the PPT of this will be shared. So coming to the economic survey, the medium term potential of Indian economy appears to be higher than the years before. Now, naturally, COVID year tha hamara, and thereby we would expect that coming 3 to 5 year will be more positive, and country's prospects are more promising in nature, right? So economic survey starts the growth prospect on a positive note that India will do better in future, and the focus would be on the reforms part. Now, if you see in the last 7-8 years, or rather 2014 onwards, because the economic survey is a roadmap, government क्या कर रही है उसका एक व्यू पॉइंट है, ऑल्सो हाउ इकोनॉमी हैज डन प्रीवियसली, इकोनॉमी कैसा कर रही है और क्या करेगी वो गवर्नमेंट उसका रोड मैप क्रिएट करती है. द करंट गवर्नमेंट इज इन पावर सिंस 2014, एंड देयर बाई गवर्नमेंट का जो अप्रोच है दैट वी हैव ब्रॉट स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी. ठीक है, तो हमारे जो रिफॉर्म्स हैं, so those reforms are the nature, so they have brought structural and the governance reform in the economy. और ये जो रिफॉर्म्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि इकोनॉमी के अंदर we accelerate the growth rate and meet the objectives of welfare. So in this phase between 14-18, reforms enhanced by underpinnings of the system. और broadly अगर देखते हैं तो हम लोग कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए हैं, लॉजिकली सोचिए what reforms India has made. So if we talk about reforms that India has made recently, one of the reform is of course the GST which was brought in 2017. तो एक broader reform GST का था, one India one tax, right? There were a lot of banking reforms. Okay, banking reforms का एक बहुत बड़ा डोमेन था. In this banking reform, one of the reform was IBC, right? And that IBC is called Insolvency and Bankruptcy Code. Okay, so ये IBC था, Insolvency and Bankruptcy Code. This came in 2016. Then we had banking reform में further we had merger of banks, reforms in the cooperative bank sector, reforms in the area of infrastructure, जहाँ गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, भारतमाला, सागरमाला, ये सारी चीज़ों का एक एस्पेक्ट है. सो नेचुरली द रिफॉर्म बेस्ड अप्रोच हैज बीन देयर एंड दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज पुशिंग. सो जो रिफॉर्म्स हैं, दे फोकस्ड अलायंसेस बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स विद फोकस ऑन सबका साथ सबका विकास. तो ये गवर्नमेंट का जो है एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास अलॉन्ग विद सबका विश्वास. दैट इज अ न्यू वर्ड दैट हैज बीन एडेड. तो अगर हम देखते हैं कि public good, implementing trust-based governance, collaborating with private sector, enhancing aggregate productivity after 2014. एक और एरिया है जहां गवर्नमेंट ने बहुत सारा एफर्ट किया है, एंड दैट इज द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर. ये अलग बात है दैट एट स्ट्रक्चरल लेवल रिफॉर्म्स कम है. सो इन 2015-16 ओके, गवर्नमेंट ने डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम की बात कही, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, एंड इसके लिए देयर वाज अ कमिटी आल्सो व्हिच वाज कॉल्ड अशोक दलवाई कमिटी. तो फार्मर्स इनकम को डबल करने के लिए गवर्नमेंट केम विद अ 7 पिलर अप्रोच, और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव था दैट वी आर एबल टू डबल द इनकम. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की बात हुई, राइट? गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ने बहुत सारे फंड्स क्रिएट किए, है ना? तो एन नंबर ऑफ थिंग्स वर देयर. तो एग्री प्रोडक्टिविटी को कैसे हम बढ़ाएं वो हमारा फोकस होना चाहिए. जैसे अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है आपका, सो वो अप्रोच रहा है. एनी रिफॉर्म, कोई भी रिफॉर्म हम लोग इकोनॉमी में करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है दैट वी शुड एक्सेलरेट द ग्रोथ प्रोसेस एंड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट. So reforms limited influence on economic growth is exacerbated balance sheet stress brought down by post credit booms and random global shock. अब देखिए 2013
से लेके ऑलमोस्ट 2019-20 तक इंडिया के अंदर एक चैलेंज था, दैट वाज कॉल्ड अ चैलेंज ऑफ ट्विन बैलेंस शीट। ट्विन बैलेंस शीट का एक कॉन्सेप्ट न्यूज में था, टीबीएस, और ये एक बैंकिंग क्राइसिस था। ओके, सो मेनली हुआ क्या था कि जो बैंकिंग सेक्टर थे, स्पेशली द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स फेस्ड हाई डेट, या कह लीजिए हाई एनपीएस। बैंक्स के एनपीएस का बढ़ना मतलब बैंक लोन जो दिए हैं उनकी रिकवरी नहीं हो रही है, तो दैट वाज हाई एनपीएस। तो बैंक के असेट नॉन परफॉर्म कर रहे थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दूसरा जो प्रॉब्लम था, हाई कॉर्पोरेट डेट। ठीक है, हाई कॉर्पोरेट डेट। इसके बाद आया, ये थोड़ा स्टेबलाइज हुआ तो आ गया कोविड-19। तो हमारी जो इकोनॉमिक साइकिल थी, ओके, जो अराउंड, अगर 2014 की बात करते तो इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था दैट वाज अराउंड 7%, 6 पॉइंट समथिंग था। तो 2014 के बाद जो हमारा ग्रोथ रेट था वो ऊपर गया, एंड देन इट स्टार्टेड कमिंग डाउन। ये हमारा कोविड ईयर है, एंड फिर ये नेगेटिव होके फिर, तो कुछ इस तरह से हमारा ग्रोथ रेट रहा है। ये पीक तो 2017 में था, और ये कोविड जो है 2020 का ईयर है। तो इफ यू सी, तो हमारा ये बूम हुआ और ये डूम हुआ। तो इफ यू सी द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, हमने क्या देखा, दैट exaggerated by balance sheet stress brought by post credit boom and random global shock। अब इस फेज में इकोनॉमी में भी बहुत चैलेंजेस आए। यहाँ पर इंडिया में डिमोनेटाइजेशन आया था, देन यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म्स लाए थे। व्हेन जीएसटी एज अ रिफॉर्म वाज ब्रॉट इन, जीएसटी एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था, एंड इट क्रिएटेड टेम्पररी सेटबैक इन द इकोनॉमी, बिकॉज इंडिया का जो पूरा इनफॉर्मल सेक्टर था वो जीएसटी में उसको ट्रांजिशन करना पड़ा, जो कि एक चैलेंजिंग फेज था। सो एंड जीएसटी को इंटीग्रेट करने के लिए, जीएसटी का इंटीग्रेशन मतलब पूरे इंडिया में आप करंट टैक्स सिस्टम को हटा के जीएसटी ला रहे हो, एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन, और सारे बिजनेस को जीएसटी से लिंक करना है। बिजनेसेस ट्रेडिशनली चलते थे, कैश बेस्ड इकोनॉमी चलते थे, वो सब ऑनलाइन जा रहे हैं, उनको टैक्स बेस्ड सिस्टम से आप जोड़ रहे हो। तो इट क्रिएटेड लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, स्पेशली द स्मॉल बिजनेसमैन, जो छोटे बिजनेसमैन, उनको इम्पैक्ट हुआ। तो उसकी वजह से इकोनॉमी में इम्पैक्ट हुआ। और ग्लोबल हेडविंड्स वर आल्सो नॉट वेरी पॉजिटिव। ग्लोबल हेडविंड्स में कोविड से जस्ट पहले ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा था यूएसए चाइना के बीच, देन ट्रेड वॉर के बाद भी ट्रेड वॉर चल ही रहा था, तो कोविड-19 आ गया। तो वी विटनेस बूम एंड शॉक, यानी बूम यानी इकोनॉमी ग्रो भी किया और शॉक भी हुआ, विच हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक क्रेडिट ग्रोथ एंड कैपिटल फॉर्मेशन। यानी हमारी इकोनॉमी के जो मैक्रो पैरामीटर्स थे, इन्वेस्टमेंट रेट हो गया, वो इम्पैक्ट हुआ, ग्रोथ इम्पैक्ट हुआ, एंड दीज वर द फैक्टर्स विच इम्पैक्टेड इकोनॉमी इन अ लैग्ड इफेक्ट। का मतलब कि इकोनॉमी के अंदर एक लैग था, एंड आउटकम वाज नॉट पॉजिटिव। लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस टुडे इज कंपैरेबल टू पीरियड ऑफ 1998 टू 2002। अगर आप 1998 टू 2002 का जो फेज देखते हैं, दिस वाज आल्सो अ डिफिकल्ट फेज फॉर इंडिया। इस वक्त वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और इस फेज में इंडिया के चैलेंजेस थे। 1998 में हमने पोखरान जो है ब्लास्ट किया था, 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, उसके बाद इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे। तो उस टाइम भी इकोनॉमी में चैलेंजेस थे, ग्रोथ थोड़ी डाउन हुई थी। गवर्नमेंट ने रिफॉर्म अप्रोच फॉलो किया। 1999 में पहली बार हमने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अप्रोच किया, हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स इकोनॉमी में किए, एंड दैट लेड टू, तो हमारे जो शॉक्स थे उससे हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, और बाद में 2004 के बाद, थ्री के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ी। सो बिटवीन 4 to 9 इंडिया का ग्रोथ रेट आज तक हाईएस्ट रहा है। इंडिया हैज विटनेस्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 9%, एंड दैट वाज आफ्टर दैट। तो हमारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि ये जो चैलेंजेस था उस फेज में, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा किया। सो दैट माइट कम इन द कमिंग ईयर्स, यानी कमिंग ईयर्स में हम लोग अच्छा करेंगे, बिकॉज हम बहुत सारा रिफॉर्म्स अभी पीछे कर रहे हैं, एंड so structural reforms began to yield growth dividend in 2003 as these shocks subsided। उस वक्त ग्लोबल इश्यूज भी थे। 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमेशा कुछ ना कुछ रहते हैं। सो आफ्टर दिस द पीरियड, वर्ल्ड इकोनॉमी भी वापस आई थी, एंड थिंग्स वेंट वेल। तो यही मानना है गवर्नमेंट का या इकोनॉमी का, भी इन फ्यूचर वी माइट सी पॉजिटिव ग्रोथ, बिकॉज अगर ये कोविड-19 एड्रेस हो जाएगा तब तक, ये जो करंट हमारा वर्ल्ड में रिसेशन कह लीजिए, हाई इन्फ्लेशन चल रहा है,
नो ऑल दोज थिंग्स विल सबसाइड, और फिर हमारा ग्रोथ इम्पैक्ट जो नेगेटिव है वो इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, एंड थिंग्स माइट बी पॉजिटिव. सो वंस पैंडेमिक शॉक एंड स्पाइक इन कमोडिटी प्राइसेस फेड अवे, इंडियन इकोनॉमी इज वेल पोजिशन टू ग्रो फास्टर. यानी जो हमारा अगला डेकेड है वो पॉजिटिव डेकेड है, ऐसा सरकार का मानना है. द पैरामीटर्स आर स्टेबल. इवन वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का अगर आप रिपोर्ट देखते हो तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की रिपोर्ट में भी सेम बातें लिखी हुई हैं, दैट 2022-23 तो 23-24 टफ रहेगा, बट उसके बाद इकोनॉमी जो है वो इट विल ट्राई टू कम बैक. सो पैंडेमिक शॉक एंड करंट ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस चल रहे हैं, स्पेशली जो वॉर चल रहा है, इससे भी वर्ल्ड इकोनॉमी बेटर हुई है. With better and healthier balance sheet in the banking and non-banking sector, a new lending cycle has started. बैंकिंग फेज जो था 2013-14 ऑनवर्ड्स के बाद, बैंकिंग सेक्टर से क्रेडिट ग्रोथ कम हो गया. क्रेडिट ग्रोथ कम होने का मतलब बैंक लोन नहीं दे रही है, बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, या बहुत कंजर्वेटिव लेंडिंग हो रही है. वाई? बिकॉज बैंक्स आर अंडर स्ट्रेस. बैंक हाई लॉसेस फेस कर रहे थे, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, एंड गवर्नमेंट वाज पुटिंग रिफॉर्म्स टू ब्रिंग चेंजेस ऑन ग्राउंड. Efficiency benefit brought down by increased formalization, greater financial inclusion, and creation of new economic opportunities जो टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है. ऐसा मानना है that in this phase एक बहुत बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी का. डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रोथ ऑफ डिजिटलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, इंक्रीज फॉर्मलाइजेशन. फॉर्मलाइजेशन मतलब कंपनीज जीएसटी की तरफ मूव कर रही हैं तो फॉर्मलाइज हो रही हैं. ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन, नाउ मोर पीपल आर यूजिंग बैंकिंग सर्विसेज, उनका एक्सेस ले रहे हैं. जब आप फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ते हो, स्पेशली दोज पीपल हु आर वीक एंड वल्नरेबल, तो गवर्नमेंट कैन रीच आउट टू यू. गवर्नमेंट आप तक पहुंच सकती है, आपको हेल्प कर सकती है, आपको लोन मिल सकता है. वो बैंकिंग, वो फार्मिंग लोन हो या फिर वो नॉर्मल लोन हो, या फिर गवर्नमेंट के बेनिफिट आप तक पहुंचेंगे, गवर्नमेंट की स्कीम्स पहुंचेंगी, गवर्नमेंट के मनी ट्रांसफर्स आप तक पहुंच पाएंगे, वो मनरेगा के ट्रांसफर्स हो या फिर वो पीएम किसान के ट्रांसफर्स हो. So all those things are going to transform in the coming time. So India will witness positive indicators and hope as per the economic survey. कुछ questions को देखते हैं as per it. So the first is which of these is correct? Reform based की हम बात कर रहे हैं, right? So as per the question, this came in 2019. Purchasing power parity exchange rate are calculated by comparing prices of same basket of goods and services in different countries. And in PPP dollar terms, India is the 6th largest economy in the world. So ये question prelims 2019 में आया था. And पहला concept PPP का है. PPP क्या होता है? Purchasing power parity का मतलब ये है that economy के अंदर, in the economy, if I compare two economies, तो दोनों के prices को हम कैसे बराबर कर पाएंगे, that is the concept of PPP. For example, goods purchase in USA अगर 3 रुपए का है और इंडिया में 1 रुपए का है, तो हम दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे और उसमें भी फार्मूला यूज करेंगे, और वो फार्मूला होगा परचेजिंग पावर पैरिटी. सो आई वुड अज्यूम दैट इंडिया में हर चीज 1/3 सस्ती है और यूएस में हर चीज महंगी है 3 टाइम्स. सो इन दैट सिचुएशन इंडिया का जो जीडीपी है वो 3 टाइम्स होना चाहिए इफ वी कंपेयर विद यूएसए. तो इसका मतलब है एक्सचेंज रेट से कैलकुलेट कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज. यानी जो बास्केट इंडिया में खरीद रहे हैं वही बास्केट अगर यूएसए में खरीदे तो दोनों का प्राइस को हम बराबर करेंगे. उस फॉर्मूले को हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं. इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड मार्केट टर्म में, और पीपीपी टर्म में वी आर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. तो इसका आंसर जो है ए होगा. दिस ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो एज यू कैन सी द सोल्यूशन. तो परचेजिंग पावर पैरिटी is the law of one price. It aims to determine the adjustment needed to made in the exchange rates of the two currencies to make them at par with the purchasing power parity of each other. ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच है जिसको हमें समझना है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एज पर पीपीपी. राइट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स इनकम से ज्यादा है. ओके, सो डेफिसिट मींस घाटा. सो इफ इनकम इज लेस देन द एक्सपेंडिचर, तो सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? डेफिसिट को फाइनेंस करेगी. कैसे करेगी? इट विल बोरो फ्रॉम द मार्केट. मार्केट से बोरो करेगी, एक्सटर्नल लोन लेगी, कुछ भी करेगी. तो दैट इज द डेफिसिट फाइनेंसिंग. आरबीआई कहेगी आप रुपए प्रिंट करो, है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी करो. सो दिस यूजली डेफिसिट फाइनेंसिंग तब होता है जब मे बी इकोनॉमी में स्लो डाउन हो रहा है,
इकोनॉमी स्लो हो रही है, गवर्नमेंट को इकोनॉमी को रिवाइव करना है, सो गवर्नमेंट विल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर मनी। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। द आइडिया बिहाइंड डेफिसिट फाइनेंसिंग इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेनली। डेफिसिट फाइनेंसिंग नॉर्मल होता है, हर समय होता है, बट आइडिया बिहाइंड डेफिसिट फाइनेंसिंग इज कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए इवन एट द कॉस्ट ऑफ डेट, यानी अपने डेफिसिट को बढ़ाएगी, फाइनेंस करेगी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ए इज द मोस्ट क्लोजर ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं, रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेट। पब्लिक डेट को पे करने के लिए डेफिसिट बढ़ाएंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नेचुरली पब्लिक डेट को पे करने के लिए गवर्नमेंट माइट बी यूजिंग न्यू टूल्स। एडजस्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्ट करना मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो इससे कोई लेना देना नहीं है, देयर इज नो लिंकेज। एंड रिड्यूसिंग द फॉरेन डेट, इसके लिए हमें डॉलर चाहिए होगा। तो ये चारों एस्पेक्ट में ए इज द मोस्ट सुटेबल एंड प्रोबेबल ऑप्शन। So deficit financing means fund to finance deficit which results excess of expenditure over revenue. और deficit financing को usually Keynesian economics model में कहा जाता है that it is desirable and needed, क्योंकि इकोनॉमी अगर स्लो हो रही है तो इकोनॉमी को रिवाइव करना होगा, और रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट माइट हैव टू गो विद एक्स्ट्रा स्पेंडिंग दैट इज जस्टिफिएबल। तो इस वजह से डेफिसिट फाइनेंसिंग एक नॉर्मल तरीका है जिसको फॉलो किया जाता है। Coming to the third question, which are the most likely advantages of implementing GST? तो GST ऑलरेडी एक टैक्स रिफॉर्म था which was brought in. So if you look at the GST, क्या है? Let's see the option one. It will replace multiple taxes by multiple authorities and thus create a single market in India. Make sense? सही लगता है ये, यानी मल्टीपल अथॉरिटीज मल्टीपल टैक्स बॉडीज को हटा के वन टैक्स वन इंडिया लेके आएगा। तो वन तो करेक्ट है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 की जगह स्टेटमेंट 3 देख लेते हैं, बिकॉज 3 इज कॉमन इन ऑल द अदर ऑप्शन। ठीक है ना? इंडिया, इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज ग्रोथ एंड साइज ऑफ द इंडिया एंड विल इनेबल टू ओवरटेक चाइना इन नियर फ्यूचर। ओके, सो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट इज नॉट वेरी राइट, बिकॉज इंडिया का ग्रोथ तो बढ़ेगा, बट दीज आर एक्सट्रीम वर्ड्स। इनॉर्मसली इंडिया ग्रो कर पाएगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इज कि हम टैक्स को फॉर्मलाइज करें एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करें लॉन्ग रन में, बट इट इज अबाउट टैक्स रिफॉर्म सो दैट इकोनॉमी को बेनिफिट मिले, इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो, ऑल्सो लोग पे टैक्स बर्डन कम हो। सो ग्रोथ तो बढ़ेगा बट इनॉर्मसली बढ़ेगा, दिस वी कांट से। साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ेगा, बट क्या हम चाइना को पीछे कर सकते हैं? सो दीज स्टेटमेंट्स आर मे बी टू रेडिकल और मे बी ऑन द एक्सट्रीमर साइड। तो ये ऑप्शन 3 इज डज नॉट सीम लाइक अ प्रोबेबल ऑप्शन। तो अगर हम 3 को वापस एलिमिनेट करते हैं तो ए ऑटोमेटिकली इज द आंसर, राइट? सो ए इज द करेक्ट आंसर। It will reduce CAD of India and will enable to increase foreign exchange reserve. CAD का मतलब ये है कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस मेनली अगर हम देखते हैं, तो उस केस में हमारा CAD रिड्यूस करेगा। जीएसटी इज अ टैक्स सिस्टम, तो हाउ विल इट विल बूस्ट द ट्रेड? ट्रेड को बूस्ट कर सकता है, बट कोई जरूरी नहीं है दैट इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस। तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। सो बाय दैट वे जीएसटी 2017 में आया था, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, एंड तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज इट विल हार्मोनाइज द टैक्स ऑफ इंडिया, और मल्टीपल टैक्स अथॉरिटीज को रिप्लेस करके वन टैक्स अथॉरिटी हो गया है इंडिया में। देन सिमिलरली स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज एक डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स है, और करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सटर्नल ट्रेड से जुड़ा हुआ है, सो वहां डायरेक्टली सब कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो दैट इज नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल एक तरह की बॉडी है, 2016 में उसका जिक्र हुआ था। इनफैक्ट जिक्र 2010 में ही हुआ था इसका। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था, राइट? सो बट इट वाज फॉर्मलाइज्ड इन 2016। तो नीति आयोग की ऑर्गन है। नाउ दिस इज इनकरेक्ट, नीति आयोग से कुछ लेना देना नहीं है। इट इज अ बॉडी विच विल एडवाइज द गवर्नमेंट एंड ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। तो इट इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, ये सही है। इट मॉनिटर्स मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। एक ऐसी बॉडी हम क्रिएट करेंगे जो इकोनॉमी के मैक्रो पैरामीटर्स को स्टडी करेगा एंड विल एडवाइज द गवर्नमेंट टू क्रिएट अ रोड मैप फॉर फ्यूचर। तो वो इसका ऑब्जेक्टिव है। इसमें 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 and 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा। 16 में आया था टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके चेयरमैन है, हेड है। ओके, 4 फंक्शंस इसके हैं। व्हाट आर द 4 फंक्शन ऑफ एफएसडीसी?
monitoring the macroeconomic supervision, focus on financial literacy, strengthening financial development, and address the coordination of various regulator. Regulator मतलब जैसे RBI हो गए, SEBI हो गए, इन पे भी हमारा फोकस रहेगा. ओके. नाउ देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल. नाउ मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया, तो वेंचर कैपिटल इस वक्त न्यूज में बहुत है, स्पेशली बिकॉज ऑफ फंडिंग, और या फिर कह लीजिए स्टार्टअप का एक फंडिंग विंटर चल रहा है. स्टार्टअप्स आर गोइंग थ्रू अ चैलेंजिंग फेज. तो वेंचर कैपिटल इज अ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय सर्टेन वेंचर कैपिटलिस्ट जो एक नए स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं सो दैट लॉन्ग टर्म उसका ग्रोथ हो. तो इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल. दिस इज इनकरेक्ट. शॉर्ट टर्म नहीं होता है, लॉन्ग टर्म होता है. टू प्रोवाइड न्यू एंटरप्रेन्योर्स, जैसे हमारे जो भी स्टार्टअप कंपनीज हैं इंडिया में 100+ यूनिकॉर्न जो है बने हैं लास्ट ईयर तक. पिछले एक साल में तो कोई भी नहीं बना. 122 तक, वी सॉ 21 तक वी हैड सो मेनी स्टार्टअप्स. फंड प्रोवाइड टू इंडस्ट्रीज, ये भी नहीं है. फंड प्रोवाइड रिप्लेसमेंट ऑफ इनोवेशन, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो आंसर इज बी, राइट. सो दैट इज हाउ इट इज. Venture capital is the capital invested in project which there is a substantial element of risk. Venture capitalist का expectation बहुत ज़्यादा होता है. They invest in the idea and they believe that future बहुत तेजी से grow करेगा and they expect high returns on the business. फिर जब business एक certain level तक पहुंचता है वो अपना पैसा withdraw करके निकल जाते हैं and they look for the new project. तो वेंचर कैपिटलिस्ट का ये अप्रोच होता है और स्टार्टअप कंपनीज को बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं. बट दे अप्रोच इज वेरी रूथलेस एंड एक्सट्रीम अप्रोच होता है इनका बिकॉज द रिस्क इज वेरी हाई ऑल्सो. ठीक है. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट. सो दीज आर द team line. You can contact the team for any kind of issues. So that is all for today. You can like the video, share the video. Thank you very much. Take care.